This conference will now be recorded. Okay. So, to tell me about something myself, so I am Puneet Taneja. So, मेरे को total 9 years का experience है in business intelligence domain. मैंने कई different projects पे काम किया है, which involves data migration and data warehousing, data visualization. So these are the key words which will be representing me, or in future if you will be working in this domain, it will be representing you as well. So I will be totally explaining you today what I am doing in industries, and how we can do the words like a data migration, how we can do the data visualization. So I will be focusing on that stuff today. So I will be showing the presentation which I am showing to my clients. So this will explain exactly what I am doing. And we have opened this firm, Complear Info System. It's been 3 years now, and this is the same deck which I always present it to my clients. So this will give you a fair idea what we do in Complear, what industries do in data, and how like this, because ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. एवरीबडी इज आस्किंग तुम करते क्या हो. तो उस चीज को आंसर करने के लिए आज हमने ये वेब सेशन रखा है, जिसमें हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि हम करते क्या है. तो बेसिकली ये बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं, आपने शायद अभी आपने शायद ये सुने नहीं होंगे, क्योंकि अभी आपने इसमें काम करना स्टार्ट नहीं किया है. बट जैसे जैसे हम इस 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 प्रोग्राम में आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये सारे वर्ड्स हमारे लिए बहुत कॉमन हो जाएंगे, और एवरी डे हम इन वर्ड्स को यूज कर रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल, डेटा वेयर हाउसिंग क्या होता है, बीआई मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, S3 डेटा लेक क्या होता है. ये वो डेक है जो कि मैं अपने क्लाइंट्स को प्रेजेंट करता हूँ, बिकॉज वो ये सारे वर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हैं. दे वांटेड टू इम्प्लीमेंट दैट एज वेल. वो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं इन देयर सिस्टम, और उनको इससे क्या बेनिफिट होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो हमारे में रेडशिफ्ट डेटा वेयरहाउस इम्प्लीमेंटेशन, सर्वरलेस पाइपलाइन, सो दीज आर ऑल द वर्क. आई नो कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, बट जस्ट वांटेड टू शो यू व्हाट वी डू. We do API development, we do extract, transform and load, which is nothing but ETL. So these are the three main categories जहां पर हम काम करते हैं, डेटा वेयरहाउसिंग में, API डेवलपमेंट में, और एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग. So about the company. So as I have already told you, it's been 3 years now. We have a presence in Ambala, Kent, and we have an office above Easy Day. We have a sitting of around 30 people. So let me mute because there is some disturbance. Okay, better. Yeah. So we have a space of 30 people, but it can be expanded. So this is our office location, which is above Easy Day in Ambala, Kent. And we have a two teams majorly. Our company is divided into two teams. So one is the application development team, so and which is led by Paras, and one is the data team, which is led by Isha. Isha is also our CEO of the company, and we also have a R&D team, which is led by me and Paras. We are incorporated on 29th of July 2016. So I will this further deck shows like what application dev team do, and so I will not go there. It is just I just wanted to give you an introduction about what company is doing. Majorly, we are focusing on three things: data warehouse modernization, API development, and extract, transformation and loading. So this is the main focus for the main subject areas where the Complear is working on. I will also show you our website. This will also give you a fair idea like how we do it. So first of all, why choosers?
So why people are choosing us? Because we can get their data. हम उनका data इकट्ठा कर सकते हैं. We can protect their data. So we know some technologies using using password authentication, multi-factor authentication, or strict password policy. With the help of these words, or with the help of these technologies, we can protect their data. We can analyze their data and utilize their data. And I will show you. This is very basic thing. How this is just in the 4 steps. Like if we categorize, this is what we do. And if you go through this program, you will be eligible, or you can be do the job of getting the data. आप data को collect कर सकते हो एक जगह पे, और उसके ऊपर कुछ मेजर्स लगा करके उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो डेटा को, और आप यूज कर सकते हो कि हम डेटा को कैसे यूज करते हैं. तो ये पूरा प्रोग्राम उसी पर डिपेंड करेगा. सो अब इधर हम बता रहे हैं कि डिजिटल क्यों होना चाहिए ऑन आवर वेबसाइट. सो दिस विल आल्सो हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे हम आगे एक्सेल करेंगे इन फ्यूचर. सो फॉर एग्जांपल, हमारे पास डेटा है बहुत सारा, ठीक है. तो हम उसके अंदर क्या डिस्कवर कर सकते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे उस डेटा को. हम देखेंगे कि हम क्या फाइंड कर सकते हैं डेटाबेस में, ठीक है. फिर हम देखेंगे कि किस डेटा पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं. क्या हमारा डेटा एकदम क्लीन है, सही है, ट्रस्टेबल है, और एकदम करेक्ट है या नहीं है. फॉर एग्जांपल, अगर हमारी IRCTC की वेबसाइट है कोई, और वो डेटा कलेक्ट कर रही है बिकॉज हम बुकिंग कर रहे हैं, राइट. फिर हम देखेंगे कि वो वेबसाइट प्रॉपरली वर्क करे. पता चले कि किसी और की बुकिंग किसी और को एलोकेट हो रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना. वो हम पूरी चेकिंग करेंगे. हम देखेंगे कि हम अपने डेटा को ट्रस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते. अगर हम ट्रस्ट कर सकते हैं तो हम उसको डिस्क्राइब करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल, इस मंथ में बहुत ज्यादा बुकिंग हुई है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन फाइंड कर सकते हैं. फिर बहुत कम बुकिंग हुई है, उसका रीजन क्या है. हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि किसी इंसिडेंट को, कि ये क्यों हुआ, कब हुआ, और या फिर हम आगे हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं. अगर हम डेटा को समझते हैं कि जैसे लास्ट ईयर इस मंथ में हमारी सबसे ज्यादा सेल हुई थी क्योंकि इस मंथ में दिवाली होती है, तो इस अगली दिवाली पे भी मतलब हमारी बहुत ज्यादा सेल होगी, क्योंकि ये वाले सारे फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, यानी फेस्टिवल्स, वो सारे सारे आने वाले हैं, या फिर इस फेस्टिवल हमारी सबसे ज्यादा सेल होती है. तो हम ये सब चीजें प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं अगर हम डेटा को अंडरस्टैंड करते हैं तो. और बेस्ड ऑन दैट हम अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, राइट डिसीजन ले सकते हैं अगर हम डेटा को समझते हैं तो. सिमिलरली, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लोग हैं, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम, हम जिसको भी राइट इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन के लिए जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, हम उनको एकदम राइट टाइम पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. अगर हमने ये सारा वर्क किया हुआ हो तो ऑलरेडी हम उनके लिए प्लान क्रिएट कर सकते हैं ताकि हमारा बिजनेस ग्रो हो सके. प्लस हम एम्बेड कर सकते हैं. एक बार हमारे में कुछ इनसाइट्स बन गई, हमारे कुछ वैल्यू जनरेट करने लग गए हम, तो हम अपने यूजर्स को भी दिखा सकते हैं वो वैल्यू. तो हम इस पे डिस्कस करेंगे. तो दिस इज ब्रॉडली व्हाट वी डू इन कंप्लेयर इन्फो सिस्टम. So guys, you can put your questions. If you have any questions, you can put on the WhatsApp group, और आप चैट में, यहाँ पे गो टू मीटिंग की चैट है, आप वहां पर भी अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं. अगर आपको किसी भी तरह कोई डाउट है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो बीच में, जैसे हर एक सेशन के बाद और बीच में आफ्टर 15 minutes I will be taking some questions if there are any. Okay, so what we do, right? These are our prospect clients. So we have some clients who are working with us, and these are the technologies which we are working on. So we are working on AWS, Talent, Serverless, Python, Java, Express, Node.js, Neo4j. So these are different. You will get familiar with all of these technologies, or on the projects you will be working on. Okay. These are the services, major services we provide. So security we provide to protect the data. Data integration we provide to collect the data. So I think I will not bore you much on the introduction section. Let's jump onto where we are like right now. So we will take one example. Okay, let's take an actor. So this actor could be anyone who has just passed out from a college. He has completed the graduation degree. Okay,
he is just a student right now. So like many of us who are attending this session are, or there are like a very limited path what he can do. So let's say we have an industry. So this is an industry. So how he can how a pass out BSc pass out or a BTech pass out student can reach to the industry and like make something in make do some success or make कुछ success प्राप्त कर सकता है या फिर कुछ how they can achieve, right? First way is that it's a direct way, like कॉलेज ने प्लेसमेंट करवाई और डायरेक्टली वो इंडस्ट्रीज में पहुंच गया, ठीक है। सेकंड वे इज दैट कि चलो ठीक है कॉलेज ने प्लेसमेंट नहीं करवाई, हम कॉलेज को ज्यादा ब्लेम भी नहीं कर सकते फॉर दैट, ठीक है। सो ही विल वर्क ऑन हिमसेल्फ, ही विल ट्राई कि वो कहीं से कुछ कोर्स कर ले, तो he will try to work on himself. So it may take some of his time, but ultimately he will reach to industries, right? So there will be some ups and downs in this process. So he might get job, he might be like he has to, there will be some ups and downs, but he will ultimately will reach to industries because he is working on himself. Okay, there could be another way that he could opt for teaching, right? Because most of the BCA students or BTech students as well wanted to teach. So that's a different path. So they can go for teaching as well. But today we will be focusing on someone who how we can reach to the industries and what these industries are doing. ठीक है, तो हम वो डिस्कस करेंगे आज। तो वन वे इज वेरी सिंपल कि उसको कॉलेज ने प्लेसमेंट दे दी, बट स्टिल कॉलेज ने अगर प्लेसमेंट दे दी तो वहां पर कभी कभी हम ऐसी जॉब प्रोफाइल में फंस जाते हैं जिसमें हम जॉब नहीं करना चाहते या फिर हमें बहुत अच्छा फ्यूचर नहीं दिख रहा होता, ठीक है। उस केस में फिर से दे स्टार्ट देयर लर्निंग प्रोसेस, बट इट्स लिटिल सिक्योर कि उनके पास एक जॉब है एंड दे जस्ट नीड टू स्विच इनटू द एरिया वेयर दे हैव इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल सी बात है कि वो कैसे पहुंच सकते हैं। तो we will be focusing on Complear Info System और Complear Academy फोकस करेगी to help students to bridge this gap कि वो फटाफट से कैसे, और गाइडेड पाथ होगा ये कंप्लीटली कि वो कैसे इंडस्ट्रीज में पहुंच सकते हैं। क्योंकि देखो अब अगर किसी ने जावा का कोर्स किया या पाइथन का कोर्स किया, पीएचपी का कोर्स किया, उसके बाद देयर इज नो पाथ फर्दर बिकॉज दीज आर वेरी बेसिक कोर्सेज, ठीक है। इसके बाद जॉब मिल जाती है बिकॉज बट यू हैव टू लाइक शो रियली वेरी हाई इंटरेस्ट एंड वेरी हाई इंटेलिजेंस, देन यू गेट अ जॉब। बट if you will add a flavor, so think like this, everybody not like milk, कोई भी दूध पीना नहीं चाहता, राइट? मतलब सबको दूध अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है बट सबको अच्छा नहीं लगता। बट अगर हम उसमें कॉफी मिला देते हैं वो सबको अच्छी लगती है। So just we are adding like some taste by adding a business intelligence. So by learning few more concepts, everybody will want you, right? It's just we are adding a taste. So why this course? Why this? Why we are focusing on this program, right? Why you are here? So once you will complete this course, you can look for job opportunities with these titles. So when we join a course, when we join any industry, तो हमें वहां पे टाइटल्स मिलते हैं। किसी को डेवलपर मिलता है, किसी को सीनियर डेवलपर, किसी को एनालिस्ट, किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो हमें मतलब मेरे भी डिफरेंट टाइटल रहे हैं इन 9 years में। फॉर एग्जांपल मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर से स्टार्ट किया, सॉफ्टवेयर एसोसिएट इंजीनियर से स्टार्ट किया, देन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देन सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, एंड देन ETL डेवलपर, देन ETL स्पेशलिस्ट। तो ये डिफरेंट टाइटल्स क्या कहते हैं चेंज। अब जैसे मेरा अभी फिलहाल मेरा है बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर 2 और बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर 1। सो दीज आर डिफरेंट टाइटल्स, बट यू विल डेफिनेटली विल गेट अ टाइटल। जब आप जॉब ज्वाइन करोगे आपको डेफिनेटली एक टाइटल मिलेगा, ठीक है। तो आप इन टाइटल्स के अंडर आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। तो दिस विल बी अ वेरी लाइक हमें पता होगा कि हमें कहाँ पे जॉब अप्लाई करनी है, हमें क्या बनेंगे हम जाकर के। दैट्स व्हाई
वी हैव पुट इट हियर। ओके, तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ठीक है, हमने इंडस्ट्री, लेट्स से कि इसने मतलब मेहनत करके इंडस्ट्री में वन ऑफ दिस टाइटल मिल गया, ठीक है। अब अभी भी ये आंसर नहीं होगा कि इंडस्ट्री करती क्या है, हम करते क्या है इंडस्ट्री में, राइट। तो उसके आंसर के लिए हम ये सारी चीजें इंडस्ट्री में करते हैं। ये जो प्रोफाइल्स है ना, तो मेजरली डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा माइग्रेशन, डेटा इंटीग्रेशन, रिपोर्टिंग और क्लाउड माइग्रेशन। तो मेजरली इन चीजों पे फोकस रहता है कि जो भी ETL डेवलपर या डेटा एनालिस्ट या बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर, टैलेंट डेवलपर, ETL टेस्टर, कोई भी आपका टाइटल हो, बट अल्टीमेटली वो ये कर रहे होते हैं, इनमें से कोई एक चीज कर रहे होते हैं। कोई दोनों कर रहे होते हैं, कोई डेटा माइग्रेशन वेयर हाउसिंग दोनों करेगा, कोई सिर्फ डेटा वेयर हाउसिंग कर रहा होगा, कोई सिर्फ डेटा माइग्रेशन कर रहा होगा, कोई सिर्फ डेटा हैंडलिंग कर रहा होगा। तो बेसिकली उनकी जॉब होती है अराउंड द डेटा, अंडरस्टैंडिंग द डेटा, मेकिंग डेटा cleaner, so or trustable, so it's their job to do it. अब क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है, ये वाले वर्ड्स अभी भी हमें पता नहीं है कि क्या होते हैं, ठीक है, मान लिया क्योंकि हमने एक्सप्लेन भी नहीं किया है, ठीक है, बट हाउ दे डू इट, करते कैसे हैं ये चीज। चलो पहले हम ये जानते हैं कि करते कैसे हैं, ताकि हम अगर हमें ये सब चीजें करनी हो तो हम करेंगे कैसे, राइट। तो हाउ दे डू इट, वी मस्ट नो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, like for example Java, Python, any programming language will work over here. So basic programming language we must have a knowledge. We must not have a knowledge on databases. So इन सारी एक्टिविटीज को करने के लिए हमारे डेटाबेसेस की नॉलेज इज अ मस्ट, ठीक है। देन वी मस्ट बी फेमिलियर विद एक्सेल शीट्स। सो आपने सबने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट्स, वी मस्ट बी फेमिलियर विद देम। एंड देयर आर रिपोर्टिंग टूल्स, रिपोर्टिंग टूल्स होते हैं जिनके ऊपर हम ग्राफ शो कर सकते हैं, ग्राफ चार्ट्स, तो ये हमारे को आने चाहिए, ठीक है। और हमारे को ETL टूल्स आने चाहिए। तो बहुत सारे ETL टूल्स हैं मार्केट में, पेड हैं, कुछ अनपेड हैं, कुछ ओपन सोर्स हैं। तो हमें ETL टूल्स के बारे में पता होना चाहिए। हमें डेटा वेयर हाउसिंग के कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। हमें डेटा वेयर हाउसिंग इंप्लीमेंट करने हैं तो उसके कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते, ठीक है, कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, वो हमें पता होने चाहिए और हर एक इंटरव्यू में वही कंसेप्ट्स पूछे जाते हैं। हमें ETL कंसेप्ट पता होना चाहिए कि लिटिल बिट जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे डेटाबेस में कहीं पे हमारे पास में सोर्स में हमारा फुल नेम शो हो रहा है, तो लेकिन हमारे टारगेट जो हमारा टारगेट डेटाबेस है उसमें हमारे को उसको ट्रांसफॉर्म करना है, फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम अलग अलग कॉलम्स में डालना है। तो हमारे को ETL कंसेप्ट, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कंसेप्ट पता होने चाहिए। चलो ठीक है, हमें पता चल गया ना वेरी हाई लेवल, मतलब 100,000 फीट लेवल पे हमें पता चल गया कि हमारे को ये टाइटल्स मिलेंगे, हमें ये सब करना है, वेयर हाउसिंग, डेटा माइग्रेशन, डेटा इंटीग्रेशन, ठीक है। हमें ये सारी लैंग्वेजेस आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, रिपोर्टिंग टूल्स आने चाहिए, ETL टूल्स आने चाहिए। फिर एक्चुअली में वो टूल्स कौन से हैं मार्केट में, ऐसे टूल्स है कौन से, तो वन ऑफ द टूल इज एक्सेल, टैलेंट, SQL एंड जावा। तो दीज आर द बेसिक टूल्स जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। और टैलेंट की जगह कोई और भी हो सकता है, ठीक है, इट कुड बी अ DODS, it could be a data stage. So there are like different tools, like every company has their tool, every big company, Microsoft has their tool, SSIS, um, Amazon has their own tool, so every company, but like we will be focusing on one tool which has a huge market, ठीक है, तो हम ये वाले टूल से यूज करेंगे। So I think now you understand that if we know what industry is doing, अगर हमें पता है कि इंडस्ट्री कर क्या रही है, तो हमारे लिए उस इंडस्ट्री में जाना बहुत इजी हो जाता है, अनलेस कि हम इंडस्ट्री में जा करके जाने कि वो कर क्या रही है। क्योंकि अगर हम एक बार इंडस्ट्री में चले गए, किसी की जॉब SEO में लग गई, किसी की जॉब ऐसी प्रोफाइल में लग गई जिसकी हाई सैलरीज नहीं है, तो देन इट विल ऑलवेज बी अ प्रॉब्लम फॉर अ लाइफ टाइम। तो लाइफ टाइम मतलब हम मतलब ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमारा जो लर्निंग का टाइम है वो हमारा खत्म हो जाता है। और अगर आप इन सब पे कोर्सेज देखोगे इंडिविजुअल, ये दीज आर बिग बिग टर्म्स, राइट। तो अगर हमें मास्टर करना है जावा को तो इट विल टेक लाइक अराउंड मंथ, SQL को करना है तो इट विल टेक अराउंड मंथ। सो वी इट जस्ट अ पुटिंग टाइम, हमें बस टाइम लगाना है उस चीज में और वो चीज हमें आ जाएगी अगर हमारे को पता है कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो फिर अब चलो हम समझते हैं कि ठीक है व्हाट, अब ये क्या, ये जो व्हाट है, अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं कि ये है क्या।
ठीक है। हम जॉब क्या करते हैं, ये तो हमें बड़े बड़े वर्ड्स बता दिए, ये तो लेकिन कोई भी बता सकता है, कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन अभी भी हमने ये नहीं बताया कि हम करते क्या है इंडस्ट्रीज में। ठीक है, किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो दे कैन पुट देयर क्वेश्चन, any doubts, any questions, they can put it on WhatsApp group. I will be checking that WhatsApp group, or they can put it on chat. Okay, I guess okay, let's proceed. So like एक इंडस्ट्री में हम करते क्या है, अगर हम बहुत हाई लेवल से देखें, सिर्फ देखें कि हम मतलब बहुत ही हाई लेवल से करते क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कोई डेटा माइग्रेशन का प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो चलो मैं ये सब कुछ हटा देता हूँ, ठीक है, हमारे पास एक डेटा माइग्रेशन का प्रोजेक्ट है, इट्स अ ब्लैंक पेज, नथिंग इज देयर। सो एक कोई मतलब एक कोई बिजनेस है जो कि उसके पास पर्सनल पीसी है, ठीक है, मतलब जैसे लैपटॉप है उसके पास में, वो उस लैपटॉप पे काम कर रहा है, ठीक है, उसने वहां पे कुछ डेवलपमेंट करी, उसने एक एप्लीकेशन बनाई, ठीक है, तो जो कि एप्लीकेशन के यूजर्स आने शुरू हो गए, ठीक है, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, ठीक है, बट वो इतना स्केल हो गया कि मतलब उसको वो एप्लीकेशन की जगह अगर हम बिजनेस में चले जाए, सॉरी अगर क्या कहते हैं हमारे पर्सनल कंप्यूटर की जगह अगर हम बिजनेस में चले जाए तो हम उसको सर्वर कहते हैं, ठीक है, तो उसके बाद अब सर्वर है क्योंकि वो एक बिजनेस एप्लीकेशन है, ठीक है, और उस एप्लीकेशन का एक सर्वर है, ये पावर अप कर रखा है, ठीक है, इस सर्वर में, ठीक है, तो अब क्या करना है, तो मतलब उसका बिजनेस और ग्रो कर रहा है और ग्रो कर रहा है, बट और उसने क्या किया कि एक और सर्वर ऐड कर दिया, ठीक है, और ग्रो कर रहा है, उसने एक और सर्वर ऐड कर दिया, तो यहाँ पे उसने देखा यार मेरे तो इतने सर्वर्स मैं खरीद नहीं सकता, तो मैं क्या करूँ, मतलब हर बार मेरा बिजनेस थोड़ा सा भी ग्रो करता है तो मेरे को और सर्वर्स ऐड करने पड़ते हैं, लेट्स से कि कोई डाउनफॉल आ गया तो वो सर्वर्स को हटा नहीं सकता क्योंकि उसने वो सर्वर्स खरीदे हुए हैं, राइट, उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया ऑलरेडी, वो सर्वर्स को हटा नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, तो इसने सोचा कि अच्छा मार्केट में क्या ऑप्शन अवेलेबल है, मार्केट में एक ऑप्शन अवेलेबल है क्लाउड। अभी क्लाउड क्या होता है, ठीक है, क्लाउड कुछ नहीं होता कि क्लाउड बस एक ऐसे समझ लो हाई लेवल पे कि ये कोई और हमारा सर्वर, कोई और सर्वर, किसी और के सर्वर्स हैं और हम बस उनके सर्वर्स यूज कर रहे हैं, हम उनके सर्वर्स रेंट पे ले रहे हैं, तो क्लाउड को ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, तो इसने कहा कि मेरे को ना अपना सारी की सारी ये चीजें है ना इस पे माइग्रेट करनी है, अपने जो सर्वर क्या होता है, सर्वर कुछ नहीं है हमारा, जैसे पीसी है ना, पीसी में क्या होता है हमारा स्पेस होता है, हार्ड ड्राइव होती है, ठीक है, और ये और क्या कहते हैं डेटाबेस होता है हमारा, ठीक है, और क्या कहते हैं हमारा प्रोग्राम लिखा होता है, तो हमें मेरे को क्लाउड पे माइग्रेट करना है, हम जैसे ईटीएल डेवलपर्स है ना, तो हम कहेंगे ठीक है, तो ये लो आपका सर्वर यहाँ से यहाँ माइग्रेट हो गया, तो हम बस यही करेंगे, ठीक है, तो Hi, Puneet. Puneet, I'm sorry to interrupt. We have one question in chat window from Akash saying that to repeat the data migration part. या सो मैं इसको डेटा माइग्रेशन को थोड़ा सा ये कहते हैं एलोबरेट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास डेटा माइग्रेशन में क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास ना हमें माइग्रेट करना होता है ऑन प्रेमिसेस मतलब अगर जैसे कोई एप्लीकेशन ऑन प्रेमिसेस में चल रही है, ठीक है, मतलब जैसे कि मैंने सर्वर्स खरीदे हुए हैं और मैं उसके ऊपर पावर अप कर रखी है मैंने अपनी एप्लीकेशन, बट वो स्केलेबल नहीं होती, ठीक है, उसको स्केलेबल करने के लिए तो देर आर सी ऑप्शन कि हम और सर्वर ऐड करते रहें, तो लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है क्योंकि दीज सर्वर्स लाइक आवर पीसीज लाइक बट दीज आर बिग पीसीज जिनकी रैम बहुत ज्यादा होती है, जैसे 500 की रैम हो गई और 500 टेराबाइट उसके अंदर स्टोरेज हो गई, तो ये बहुत कॉस्टली होती है, ठीक है, तो or there are some providers, cloud providers, which will which has the capability to buy those servers and they can provide services. वो services provide करते हैं small medium enterprises को, like they can buy all servers and we can just use their servers or rent out their servers, right? So let's say मैं एक बारी ऐसे करते हैं, ठीक है,
लेट्स से कि हमारी कोई एक एप्लीकेशन है जो कि इस डेटाबेस से पावर अप, ठीक है। अब इस डेटाबेस से पावर अप है हमारी एप्लीकेशन, ठीक है। ये हमारा सारा का सारा डेटा इस एप्लीकेशन इस डेटाबेस में स्टोर्ड है। हमें इस डेटा को क्लाउड पे माइग्रेट करना है, क्योंकि ये अगर ये जो क्लाउड प्रोवाइडर है, सपोज ये एक AWS क्लाउड प्रोवाइडर है, ठीक है। ये अपने कुछ इसके पास भी कुछ डेटाबेसेस हैं, ठीक है, इसके अपने डेटाबेसेस हैं, ठीक है। तो हमें अपना डेटा सारा का सारा मूव करना है, ठीक है, इस क्लाउड प्रोवाइडर के डेटाबेस में, ठीक है। ये हो गया हमारा डेटा माइग्रेशन, हमने सारा अपना डेटा को माइग्रेट कर दिया ऑन क्लाउड। Or it could be migration could also be on premises, like एक database से अगर हमारे को दूसरे database में shift करना है तो migration could be like this as well, कि एक database से दूसरे database में data को migrate करना, उसको हम migration कहते हैं, okay. But major projects are in this time major projects are coming where we have to migrate like on premises database to a cloud database. So this is data migration, कि हमें सारा का सारा डेटा को माइग्रेट करना है दूसरे डेटाबेस में, ठीक है। और वो सेम कंपनी का डेटाबेस भी हो सकता है और दूसरी कंपनी का डेटाबेस भी हो सकता है, या फिर सेम टाइप का डेटाबेस भी हो सकता है दूसरे टाइप का डेटाबेस। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेसेस, वो हम कवर करेंगे लेटर ऑन, ठीक है। अब इससे इससे हमारे को बेनिफिट क्या हुआ, ठीक है। जैसे कि सपोज ये हमारा डेटाबेस सारा इधर चला गया, ये एप्लीकेशन भी हमने यहाँ से पावर अप कर दी, अब यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, हमारा ऑन प्रेमिसेस डेटाबेस अब कुछ मतलब अब हमारे को ऑन प्रेमिसेस डेटाबेस की जरूरत नहीं, हमारा क्लाउड में डेटाबेस चला गया। अब इससे बेनिफिट्स क्या हुए, इससे देखो क्लाइंट हैप्पी कि उसको नए नए डेटाबेसेस या फिर नए नए सर्वर्स बाय नहीं करने पड़ेंगे जैसे उसकी ग्रोथ होगी, या फिर वो अगर उसके यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट नहीं लगेगी। यहाँ पे क्या है कि जो AWS है, कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर है, जैसे ही उसकी एप्लीकेशन का लोड इंक्रीज होगा तो वो यहाँ पे एक डेटाबेस ओवरराइड कर देंगे, जैसे कम होगा वो हटा भी देंगे, तो हमें सिर्फ उतना ही पे करना है जितनी हमारी एप्लीकेशन यूज कर रही है सर्विसेज। तो ये हमारे को क्लाउड में जाने का बेनिफिट होता है, क्योंकि यहाँ पे सर्वर्स और कोई और मैनेज कर रहा है, हमें कोई अपफ्रंट कोई भी सर्वर्स या फिर कुछ भी नहीं खरीदना, तो ये हमारे को बेनिफिट होगा। इसलिए हमारे को, और हम जो ETL डेवलपर्स हैं या SQL डेवलपर्स हैं या बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर हैं, उनको यहाँ पे माइग्रेशन का वर्क मिल गया, यहाँ से यहाँ माइग्रेट करने का, ठीक है। तो यानी कि वी आर हैप्पी, क्लाइंट इज, जिसने काम करवाना है वो भी हैप्पी, क्लाउड प्रोवाइडर इज हैप्पी, और कस्टमर्स आर आल्सो हैप्पी। फॉर एग्जांपल कि उनको यहाँ से, क्योंकि ये प्रॉमिस करते हैं AWS वाले कि हम सबसे ज्यादा फास्ट स्पीड देंगे, एप्लीकेशन सबसे ज्यादा फास्ट लोड होगी, ठीक है। तो उसके अंदर कैसे वो लोड करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, कि कैसे फास्ट करते हैं वो, बट ठीक है। तो दिस इज ऑल डेटा माइग्रेशन। अगर हम इसको थोड़ा सा और डीप में जाएं तो यहाँ पे हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट तो होता नहीं, देयर आर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। वहाँ पे HR होगा, वहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, सेल्स होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, तो हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग डेटा सेट होते हैं, ठीक है। तो उन डेटा सेट्स को हमें सबको समझ करके एक ही डेटा बनाना होता है। तो ये भी एक तरह की डेटा माइग्रेशन है, ठीक है। हम यहाँ से भी, हम ये वाला नहीं लेते हैं क्योंकि ये वन साइड होगा, ठीक है। यहाँ से हमारा सारा डेटा यू मूव होगा, तो ये भी एक डेटा माइग्रेशन होती है। इसमें क्या है कि हमारे को पूरा डेटा को अंडरस्टैंड करना है और हमें डेटा को कंसोलिडेट करना है एक ही जगह पर, तो दिस इज ऑल्सो अ डेटा माइग्रेशन, ठीक है। अब ये ऐसे तो हो नहीं जाएगा क्योंकि मतलब ये तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल डेटा है, राइट। तो हमें सारा डेटा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का डेटा हमें सारी जगह कलेक्ट करना है, सो दैट हम 360 डिग्री व्यू देख सकें हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। हम मैच कर सकें कि इस कस्टमर का इतना बैलेंस है, इतना पेंडिंग है, इसने इतनी प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, ये इतना लॉयल कस्टमर है या फिर ट्रस्टेबल कस्टमर है, और ये रिपीटिंग कस्टमर है या नहीं है। तो ये सारी एनालिसिस करने के लिए हमें मार्केटिंग डेटा, अगर जैसे यहाँ पे सेल्स हो गया, ये मार्केटिंग हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पे हमारा फिनेंस हो गया, ठीक है, और ठीक है, ये हमारा HR का डेटाबेस हो गया कि उसकी परफॉर्मेंस वगैरह कैसी चल रही है किसी की भी, ठीक है।
तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट मतलब और भी बहुत सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ही डेटा सोर्सेज हो सकते हैं। उन सारे डेटा को हमें समझ करके डालना है, हाँ, एक ही कंसोलिडेटेड प्लेस पर। ठीक है, ये भी एक डेटा माइग्रेशन है। ये ऐसे तो डल नहीं जाएगा, राइट? इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी जैसे कि हमारी स्टेजिंग लेयर होगी, ठीक है, यानी चलो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारे यहाँ पे एक जगह पे हमने कलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या? उसके बाद हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक इसके ऊपर एक एप्लीकेशन पावर अप कर सकते हैं, जो कि हमें बताएगी कि कैसे क्या ये डेटा क्या करता है। ठीक है, हम इसके ऊपर एक एप्लीकेशन पावर अप कर सकते हैं। हम इसके ऊपर एपीआई डेवलप कर सकते हैं। अगर हम इसको कहते हैं एक काम करते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं एपीआई डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, एपीआई क्या होता है वो भी आपको धीरे धीरे पता चलेगा। यहाँ पे हमने ऐप बना दी, यहाँ पे हमने इस डेटा पे एपीआई, क्योंकि ये जो है बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन क्लीन हो चुकी है और एक ही जगह कंसोलिडेटेड है, जो कि एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ में हम यहाँ पे रिपोर्ट्स, हम क्या कहते हैं, ईमेल रिपोर्ट्स ट्रिगर कर सकते हैं हम यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है, कि हमारी कंसोलिडेटेड ईमेल रिपोर्ट्स आएगी सबको। ठीक है, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं हम यहाँ पे ग्राफ्स वगैरह, चार्ट्स वगैरह सब कुछ बना सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये बेसिकली ये बहुत ज्यादा एडवांटेज रहता है बिजनेस के लिए। और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं? मतलब ये सबको जरूरत पड़ती है? नहीं, ये वो ऑर्गेनाइजेशन करती है। फॉर एग्जांपल कोई एक एप्लीकेशन है जो कि स्टेबल हो चुकी है, जो कि ग्रो करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि इसके बाद हम क्या करें कि हमारे को और प्रॉफिट हो। मतलब वो एक लेवल पे पहुंच चुके हैं एंड दे आर नाउ इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर। तो अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो इट्स हाईली मतलब पॉसिबल कि हमारे को वहां पे अच्छी सैलरीज मिलेंगी। क्योंकि अगर कोई ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है तो वहां पे हमारी सैलरी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है फॉर द फ्यूचर, तो वहां पे मोस्टली हमारी सैलरीज हायर होती हैं एज कंपेयर टू अदर प्रोफाइल्स। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक मतलब रीजन ही है, क्योंकि यहाँ पे जब जो ये काम कर रहा होता है ना, वो एप्लीकेशन, वो इंडस्ट्री, वो कंपनी स्टेबल हो चुकी होती है काफी ज्यादा। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर फोकसिंग ऑन फ्यूचर। ठीक है, अब हमारे को हर एक प्रोडक्ट की एपीआईज मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, मतलब थोड़ा सा डीप इन की हमने एक हम इंडस्ट्री में गए, फिर उस इंडस्ट्री में क्या क्या होता है। और मतलब ये तो सिर्फ हमारा एग्जिस्टिंग डेटा को हमने एक जगह पे कंसोलिडेट किया है, राइट? इसको हम डेटा वेयर हाउस बोल देते हैं, जिसमें हम सारा डेटा डालते हैं। तो अभी तक हम डिस्कस करते हैं डेटा वेयर हाउसिंग, तो दिस इज अ डेटा वेयर हाउसिंग, कि हमने सारी डेटा, इनको हम डेटा मार्ट्स बोल देते हैं अपने टर्म्स में। इन डेटा मार्ट से हम सारा डेटा लेकर के डेटा वेयर हाउसिंग में ले आए और इसके ऊपर हमने अपनी एप्लीकेशंस को पावर अप किया। तो मेजरली ये काम सबसे ज्यादा होता है इंडस्ट्रीज में। एवरी इंडस्ट्री, चाहे वो टेलीकॉम हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स हो, दे रिलाई ऑन डेटा, एंड फॉर दैट डेटा, टू गेट द 360-degree view of their organization, they have to integrate all of their data. So this is a data migration. So I hope, Rubal, here we have answered the question of data migration. I will move now on to data integration. If there are any questions or somebody want to ask anything, so they can put their questions on chat or on GoToMeeting chat or WhatsApp group. Okay, let's see what is data integration. So you know that there are like lots of social platforms like Facebook, right? There are platforms like Salesforce, so which help organizations to do a sales activity, right? There are some applications like SAP, so which could be an internal application, of any organization. Okay, but these are the external, so they might have a page on Facebook, or this is also internal for any organization, or they are doing a marketing campaign, so there is a marketing cloud, so Marketo.
So there are different tools which help business to grow. Instagram is also one of them. Google Analytics, because कोई भी अगर कोई वेबसाइट लॉन्च करता है तो उसकी एनालिसिस के लिए वो गूगल एनालिटिक्स यूज करता है. गूगल एडवर्ड्स, अगर कोई एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाते हैं तो वहां पे चलाते हैं. फेसबुक में अगर वो ऑनलाइन सेल करते हैं तो अमेजोन हो गया, ठीक है, अमेजोन का सेलर अकाउंट हो गया, ठीक है. तो हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है. तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म है. क्लाउड प्लेटफॉर्म इसको हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पूरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. हमें तो बस अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करना होता है वहां पर, राइट. किसी भी अगर कोई सेल कर रहा है, कोई अगर बिजनेस है तो उसको तो अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करना होता है. तो यहाँ पर ये पूरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमको. और बहुत सारे ऐसे मार्केट में टूल है, ठीक है. तो इन पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती रहती है. सेल्स फोर्स में हमारी सेल्स की लीड्स आती रहती है, मार्केटों में हमारे मार्केटिंग कैंपेन रन होते रहते हैं, फेसबुक में हमारे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रन होते रहते हैं. एसएपी में हमारा क्या कहते हैं, जो भी रजिस्ट्रेशन होती हैं या फिर फाइनेंस का डेटा होता है वो हमारा सारा एसएपी से आता है. अमेजोन में हमारे ऑर्डर्स आते रहते हैं अगर कोई ई कॉमर्स है, ठीक है. तो इन सारे डिफरेंट, इसमें क्या है कि इसमें हमारा वन टाइम एक्टिविटी है. डेटा माइग्रेशन में हमारा क्या होता है कि हम उन्हें कहेंगे तुम अपना ट्रांजेक्शन रोक दो थोड़ी देर के लिए, हमारा डेटा माइग्रेशन होने दो पहले, ठीक है. जैसे कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट है, ठीक है, रात में 11:30 बजे वो डाउन होती है. रात में 11:30 से लेकर के 12 बजे तक हम कोई भी बुकिंग नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो उसमें अपना सारा का सारा डेटा माइग्रेट कर रहे होते हैं डेटा वेयर हाउस में. तो इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए बुकिंग को रोक देते हैं ताकि उनकी रिपोर्टिंग ठीक रहे. और फिर उसके बाद में आफ्टर हाफ एन आवर एवरीथिंग इज फाइन, they can do the booking. So at the end of the day they move all of their booking data to the data warehouse. So that's why they just stop the booking for some time, ठीक है. तो यहाँ पर तो हम स्टॉप नहीं कर सकते, राइट. सो ये डेटा इंटीग्रेशन है, ठीक है. यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे हमारा फेसबुक में हमारे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक्स आ रहे होंगे, मार्केटिंग में हमारे लोग ईमेल्स ओपन कर रहे होंगे. तो फेसबुक इंश्योर करता है कि हमारा जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके. मार्केटो है वो इंश्योर करता है कि हम जो ईमेल्स कर रहे हैं वो कितनी ईमेल्स ओपन हुई, कितनी ईमेल्स को लोगों ने पढ़ा, तो वो सारी चीजों को ट्रैक करता है. सेल्स फोर्स हमारी सेल्स की एक्टिविटीज को ट्रैक करता है. एसएपी हमारी फाइनेंस की एक्टिविटीज को ट्रैक करता है. अमेजोन हमारे जो हमारे ऑर्डर प्लेस होते हैं उनको ट्रैक करता है, ठीक है. तो हमारा सारा अगर कोई बिजनेस रन हो रहा है वो मैक्सिमम वो ये टूल्स तो 101% ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं. इसके बिना तो देयर इज नो सक्सेस इन टुडेज वर्ल्ड. उसके बिना सक्सेस ही नहीं है अगर वो मार्केट ये टूल्स यूज नहीं कर रहे हैं, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है. अब जो क्या होती है हमारी, अब हम क्या करते हैं कि हम इसको यहाँ से सारा डेटा को हम रेगुलरली मींस इन अ रियल टाइम, एज सुन एज कोई भी एक्टिविटी हुई हम उसको डेटाबेस में लॉग कर देते हैं. कोई भी एक्टिविटी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे हुई हम उसको डेटाबेस में लॉग कर देते हैं, ठीक है. फिर हम देखते हैं कि इस एडवर्टाइजमेंट कैंपेन से हमारी कितनी सेल्स इंक्रीज हुई, ठीक है. तो जितनी भी सेल्स हो रही है उनको भी हम रियल टाइम में या फिर नियर रियल टाइम की हर एक घंटे के स्लॉट में या 5 मिनट के स्लॉट में हम उनको डेटाबेस में लॉग करते रहते हैं और उनको रिलेशन बनाते रहते हैं, ठीक है. इसी तरह से अगर किसी ने सेल्स करी और उसके पास फाइनेंस टीम के पास उसका डेटा पहुंचा या नहीं पहुंचा, एसएपी में हम फाइनेंस का डेटा स्टोर करते हैं. सिमिलरली हमारे पास अगर उसने कितने ऑर्डर प्लेस करे, ठीक है, उसका हिस्ट्री या फिर कुछ भी हमारे पास ये रियल टाइम में. तो यहाँ मैं थोड़ा सा कर देता हूँ कि रियल टाइम और नियर रियल टाइम, NRT, नियर रियल टाइम, ठीक है. ये जो ट्रांजेक्शन होती है नियर रियल टाइम होती है. जैसे कोई भी हम सारे डेटा को लॉग करते रहते हैं यहाँ पर, ठीक है. और फिर हमारा यहाँ से हम इसको माइग्रेट करते हैं अपने DWH में, जहाँ पे हमारा सारा ऑर्गेनाइजेशन डेटा पड़ा है. ये सेम DWH है. चलो हम इसको यहाँ से यहाँ ले चलते हैं. ये देखो हम यहाँ से यहाँ, ठीक है. तो हमारे पास अब रियल टाइम डेटा भी आने लगा क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं डेटा की, ठीक है. और उसके ऊपर हमने APIs डाल दी और ये सब डाल दी. तो ये बहुत ही हाई लेवल में आपको बता रहा हूँ कि क्या जॉब्स होती हैं मार्केट में और हम क्या काम करते हैं. किसी को कोई क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन पूछ लेना. आप चैट पे क्वेश्चन डाल सकते हैं, गो टू मीटिंग की चैट में डाल सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल सकते हैं, ठीक है. और अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो मेरे पास और अच्छा आंसर होगा आपको बताने के लिए.
सर आपने ये तो बता दिया कि जो जॉब्स हैं वो क्या है और इंटीग्रेशन कैसे है। सर इनकी जो अपना स्पेसिफिकेशन है या जो स्किल्स है वो कैसे गेट करनी है, प्लीज वो थोड़ा उसके जरा बता दो। हाँ हाँ, तो ये वाला जो सेशन है ना, जो फर्स्ट सेशन है ना, तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन सेशन है, क्योंकि उसके लिए हमने हमारा पूरा प्रोग्राम हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि हम ये सारी जॉब्स कर सके, कि हम इसमें एक्सपर्ट बन सकें, फ्रॉम नोइंग नथिंग टू नोइंग एवरीथिंग, कि मतलब हमें हमें सब कुछ आ जाए। ये तो जस्ट एक डायग्राम है, और ट्रस्ट मी दिस विल बी वेरी इजी। तो उसी चीज को हैंड आपने एकदम राइट क्वेश्चन पूछा, उसी चीज को हैंडल करने के लिए हम मैंने वर्किंग डेमो रखा है यहाँ पे आज का। ठीक है, अभी हम एक डेमो करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि हम ये करते कैसे हैं। ठीक है, देखो इन सबको करने के लिए आपको ये वाले टूल्स आने चाहिए। यहाँ पे मैंने टूल्स बताया ना, जावा, सीक्वल, टैलेंट और एक्सेल। ठीक है, आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, तब आप ये सब चीजें कर सकते हो। ठीक है, जॉब सबसे पहले ये सोचो, ये जॉब आपको इंटरेस्टिंग लगी? अगर इंटरेस्टिंग लग रही है कि हाँ डेटा के साथ, क्योंकि मेरे को तो डेटा बहुत एक्साइट करता है। मेरे को तो ऐसा होता है कि हमेशा से ही डेटा ही सब कुछ है, और इवन तो अब तो नरेंद्र मोदी ने भी बोल दिया है कि डेटा इज द न्यू पेट्रोल। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी आर डीलिंग इन डेटा ओनली। ठीक है, अब हमारे पास टूल आने चाहिए, हमारे पास जावा, सीक्वल, टैलेंट और एक्सेल। अब लेट्स जंप ऑन टू वर्किंग डेमो। तो एक और क्वेश्चन लोगों ने मेरे से बहुत पूछा है कि यार हमारे को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, हम प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट नहीं है, और या फिर मैं प्रोग्रामिंग में जाना नहीं चाहता, मेरे को चाहिए कि मतलब थोड़ा ऊपर ऊपर से काम हो जाए, मैं प्रोग्रामिंग में नहीं जाना चाहता। मैं मतलब मेरे को मैं कर लूंगा प्रोग्रामिंग, बट मेरे को इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, या फिर मेरे को थोड़ी सी प्रोग्रामिंग मुश्किल लगती है। तो ये वाली चीजें हैं। ठीक है, तो अब इस चीज को मैंने कहा कि ठीक है, देखो ये सब चीजें ना अभी ना मार्केट में बहुत सारे जैसे देखो मेन जो प्रोग्राम है ना वो फोकस है हमारा ईटीएल पर। ठीक है, ये सारा कुछ ईटीएल है। जो टैलेंट एक टूल है जिससे हम ये सारा कुछ करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ विद अ वर्किंग डेमो। अब हम इस पार्ट करते हैं वर्किंग डेमो पे। देखो ये हमारा एक टूल है। ठीक है, इससे ही हम करते हैं। इसमें हम सिंपल एक ना जॉब क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे मैं डेमो लिख लेता हूँ, देखो कितनी जल्दी हम जॉब करेंगे। और इसमें आपके सामने होगा, मैं कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी यूज हो रही है, बट यूज हो रही है, हमें पता होना चाहिए, लेकिन हमें मतलब हमें मतलब इतना ज्यादा प्रोग्रामिंग में काम नहीं करना होता। ठीक है, अब हमारे पास मैंने तुम्हें बताया कि हमें एक्सेल की जरूरत होगी, तो मैंने क्या किया कि अपने डेस्कटॉप पे एक मैंने ये बनाई है एक्सेल सीएसवी। ठीक है, ये मेरा एक डेटा सेट हो गया। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, नेम्स और इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड। ठीक है, तो इंटरेस्टेड 1 और 0, जो जो इंटरेस्ट जिसके आगे इंटरेस्टेड 1 लिखा हुआ दैट मींस दे आर इंटरेस्टेड, और जिसके आगे 0 लिखा हुआ दैट मींस दे आर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो और यहाँ पे नेम्स हो गया ए से लेकर के ओ तक। ठीक है, चलो इस डेटा को थोड़ा और मैचअप कर देते हैं। यहाँ पे हमारी मल्टीपल सेल्स टीम काम कर रही है, तो उसने उसने 2 बारी डेटा कलेक्ट कर लिया, मतलब एक ही बंदे से 2 बारी रिपोर्ट आ गई इसके अंदर। तो ये थोड़ा सा हमने डेटा को मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, और यहाँ पे सपोज ओ का रिकॉर्ड भी 2 टाइम्स आ गया। ठीक है, तो ये हमारा डेटा हो गया, ये एग्जाम्पल डेटा सेट हो गया। ठीक है, लेट्स सी कि हम इस पे क्या कर सकते हैं, हम इसको माइग्रेशन या फिर इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और देखो मैं बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज नहीं करूंगा। ठीक है, और लेकिन हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं कि हमें चाहिए नहीं, हमें डेफिनेटली चाहिए। ठीक है, लेकिन हमें बेसिक चाहिए एकदम। किसी को फॉर लूप आता है, किसी को स्ट्रिंग हैंडलिंग आती है, तो बस उतना ही चाहिए हमारा, हमें इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अब मेरे को 9 साल हो गए करते हुए, मेरे को नहीं आते जावा में सर्वलेट्स राइट करने, मेरे को नहीं आते, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम नहीं है एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, इतना ज्यादा काम नहीं है, डेटा माइग्रेशन का ज्यादा काम है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे को सिर्फ वो वाली नॉलेज चाहिए जो हमारे को जॉब में चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि मैं सिंपल सी विद फ्यू क्लिक्स, ठीक है, मैं यहाँ पे उस फाइल को इंपोर्ट कर लूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ डेमो, उस फाइल का नेम है हमारा। यहाँ पे हम फाइल का मेटा डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं। मेटा डेटा मैं बताऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, ये हमने डेस्कटॉप पे फाइल रखी थी, कोई भी फाइल जैसे हम अपलोड करते हैं सिंपल है। ये हमने डेस्कटॉप पे फाइल रखी, हमारी वो फाइल आ गई नेम्स और इंटरेस्टेड। ठीक है,
नेक्स्ट हमने कहा कि ये CSV फाइल है और कॉमन सेपरेटेड है। हमने यहाँ पे डेटा को प्रीव्यू करके देख लिया और हमने कहा कि ये देखो ऐसे है, तो हमने कहा कि सेट हेडिंग एज कॉलम नेम्स। ठीक है, अब ये हमारा एक डेटा इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे नेम्स को हम यहाँ पे कैरेक्टर्स की जगह स्ट्रिंग कह दिया, तो सिंपल सी हमने थोड़ी डेटा फॉर्मेटिंग कर ली। ओके ओके, देन वी विल डू, इसको हम यहाँ पे 100 कर लेते हैं और यहाँ पे भी 100 कर लेते हैं। ठीक है, एंड देन वी डू फिनिश, दैट्स इट। अब हमारा सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप का खेल है। यहाँ पे हमने यहाँ पे फाइल को इसमें रखा और हमने यहाँ पे टी लॉग रो, एक इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, हमने बस टी लॉग रो लगाया और यहाँ से इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। जैसे हम डायग्राम बना रहे थे ना, वैसे ही हमारी डेवलपमेंट भी हो जाती है। ठीक है, और हम इसको रन करेंगे और हमने उस फाइल को हमने रीड कर लिया। यहाँ पे अभी मैं दिखाता हूँ, तो ये देखो वो वाली फाइल का सारा डेटा हमारा यहाँ पर आ गया। जस्ट हमने उस फाइल से कनेक्शन बनाया, उस फाइल का पाथ बताया हमने कहाँ पे है। हमने क्या क्या किया यहाँ पे, हमने ये बताया कि उस फाइल का पाथ क्या क्या है, उस फाइल का हमने डिलीमीटर सेट किया, 2-3 चीजें करी और हमें कोई प्रोग्राम तो नहीं लिखा ना यहाँ पर। ठीक है, इट वाज वेरी इजी और हमने वो फाइल को रीड कर लिया। अब लेट्स सी कि हमें इस फाइल को आगे फिल्टर करना है, हमें इस फाइल पे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। हमारी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, हमें डेटा को फिल्टर करना है, सिर्फ हमें इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स चाहिए। तो यहाँ पे हमने लगाया टी फिल्टर। इतना इजी होता है इंडस्ट्री में काम करना, टी फिल्टर लो। ठीक है, ओके। अब यहाँ से हमने सिर्फ ये बता दिया कि यहाँ पे हमारी कंडीशन लगा दो जिसमें हमारा इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड बी 1, दैट्स इट। इतना इजी। मैंने यहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं लिखा और हमारा ये प्रोग्राम डेवलप हो रहा है और ये बहुत स्केलेबल है, बहुत ही ज्यादा। मतलब मेरे को पर्सनली 9 इयर्स हो गए इस टूल पे काम करते हुए। देखो अब यहाँ पे कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं आ रहा जो इंटरेस्टेड ना हो, बट हमने देखा यार हमारे तो डुप्लीकेट्स आ रहे हैं, ए भी 2 बार आ रहा है, ओ भी 2 बार आ रहा है, तो हमने दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी। ठीक है, टी यूनिक रो, तो इसने क्या किया, सारे ये डुप्लीकेट्स हटा देगा इसमें से। ठीक है, तो अब इसको मैं ना एक टेबल फॉर्मेट में लिख लेता हूँ। ठीक है, अगर आपको इसका जावा का प्रोग्राम बनाना होता तो आपको कितनी देर लगती, या फिर पाइथन में बनाना होता या फिर किसी में बनाना होता। देखो यहाँ पे सारे इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आ गए। ठीक है, और यहाँ पे हमें यूनिकनेस डिफाइन करनी पड़ेगी कि भैया हमारे नेम यूनिक होने चाहिए और ये इसके बेसिस पे हमारा यूनिक होना चाहिए, नेम यूनिक होना चाहिए। तो इसमें से हम इसे रन करेंगे, हमारे यूनिक वाले सिर्फ यूनिक नेम्स आ रहे हैं। देखो हमारे 2 रिकॉर्ड डुप्लीकेट्स थे ना, वो हट गए। अगर हमें जानना है कि जो नॉन इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स थे, तो हम एक और टी लॉग रो लगा लेंगे। टी लॉग रो कुछ नहीं होता, कंसोल करने के लिए होता है, कि कंसोल पे राइट करने के लिए। तो बस अभी ये आपके लिए बहुत ज्यादा हाई लेवल चल रहा है, बट मैं आपको, क्योंकि मेरे से लोग डेमो मांग रहे थे। ठीक है, तो अब ये जहाँ पे जो भी इसके रिजेक्ट्स है, यानी कि नॉन इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, लाइक, ठीक है, और इसको भी मैं टेबल में डाल दूंगा। तो यहाँ पे हमारे सारे नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आ गए। तो ये बहुत ही ज्यादा स्केलेबल है और इसमें हमारे को बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती। 99% काम है जो हमारा इसी में ही हो जाता है। तो ये देखो, ये इधर हमारे सारे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इधर सारे हमारे नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आ रहे हैं। एक्साइट कर रहा है ये चीज? ओके, तो हमें सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं होती, हमें होती है। अगर हमें इसकी कैपेबिलिटीज को एक्सटेंड करना होता है, ये टूल बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत ज्यादा एडवांस टूल है ये। ठीक है, इसमें सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देखो इसमें यहाँ पे कोड लिखा हुआ ना, इसने अपने आप से इसने भी 2-3 हजार लाइन का कोड जनरेट कर दिया। देखो पूरे जावा का कोड जनरेट कर रहा है ये। ठीक है, और यहाँ पे मैं दिखाऊं कि अगर मैं यहाँ पे लाइन नंबर्स लेकर के आऊं, ठीक है, इसने 2000 लाइनों का कोड लिख दिया हमने, और कितनी देर लगी हमारे को। इसीलिए इंडस्ट्री इतना फास्ट चल रही है और इसीलिए एकेडमिक्स थोड़ा सा पीछे रह गया है, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फास्ट चल रही है। ठीक है, और ये टूल तो इंडस्ट्री ने फ्री कर दिया है कि ये लोग फ्री में ले लो, क्योंकि हमने इस पे 20 साल काम कर लिया, अब ये फ्री में तुम यूज कर लो। वो हमसे 20 साल आगे चल रहे हैं, 6 साल हो गए इस टूल को फ्री करे हुए। ठीक है,
तो ये हमारा ये हमारी डेटा माइग्रेशन हो गई। हमने डेटा रीड किया, हमने डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया और हमने आगे हम इसको, हमारे पास देखो कितने डेटाबेसेस के कनेक्शन है अभी, और ये पूरा का पूरा ओपन सोर्स है। कोई भी मतलब मैंने जितनी भी टेक्नोलॉजीज के नाम यहाँ लिए ना, सारे के सारे की कनेक्शन हमारे पास अवेलेबल है। जैसे हमने एक्सेल शीट से कनेक्शन बनाया है, हम बहुत सारे डेटाबेसेस से कनेक्शन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ठीक है, जैसे कि हम ओरेकल से बना सकते हैं, पोस्टग्रेस से, टेराडाटा से, एक्सिस से, राइट। अगर मैं इसको हटाऊं तो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हमारे बहुत कंपोनेंट्स अवेलेबल है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको सिर्फ 2 ट्रांसफॉर्मेशन का डेमो दिया है, फिल्टर का और यूनिक रो का। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जैसे प्रोसेसिंग के लिए हम डेटा को रिप्लेस कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग हैंडलिंग कर सकते हैं, हम सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब जैसे कि जो सेल्स फोर्स से डेटा आ रहा है या एसएपी से डेटा आ रहा है, उन दोनों को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम फिल्टर कॉलम कर सकते हैं, जैसे कि हमारे को फ्लैग नहीं चाहिए, सिर्फ जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि फिल्टर कॉलम, हर एक चीज के लिए हमारे पास एक मोस्टली 800 कंपोनेंट्स हैं, जिनको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं, फाइन कंपोनेंट्स, राइट। हमारे पास मोर देन 800 कंपोनेंट्स हैं, और फिर हमारे पास एक कम पड़ती है तो हमारे पास एक मार्केट प्लेस है, वहां से हम कंपोनेंट्स को डाउनलोड, और भी कंपोनेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज हमें चाहिए, हमें हमारे पास अगर अगर नहीं भी है ना, तो ये ओपन सोर्स है, तो यहाँ पे हम कंपोनेंट डेवलप भी कर सकते हैं। हम ये कंपोनेंट्स खुद से भी डेवलप कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसी कोई चीज है कि जो कि हमने कस्टम कोड करी है, ठीक है, उसको कंपोनेंट बना करके यहाँ डाल दो, तो हम खुद से कंपोनेंट्स भी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, बस हमारे को यहाँ पे सिर्फ नेम्स चाहिए, तो हमारे पास सिर्फ नेम्स आएंगे। अब हमारे पास फ्लैग नहीं है, सिर्फ ये इंडस्ट्री, क्योंकि मतलब अगर हमें किसी को रिपोर्ट सेंड करनी है, हम ये थोड़ा फ्लैग थोड़े साथ भेजेंगे, हम सिर्फ नेम्स, राइट। तो अब सिर्फ नेम्स आएंगे इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स के। अब बताओ कि क्वेश्चन हो कि कैसे करेंगे, टूल्स क्या यूज होते हैं। तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड दैट। एनी अदर क्वेश्चंस? Because now we are moving on to next section, which is question and answer section. So I would want that you ask questions. It's about like how you will excel in industry. और मेरे पास जैसे स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास जैसे कि अगर हम प्रीवियस एग्जांपल्स लें, ठीक है, कि हमने क्या क्या काम किया, किस कौन कौन लोग हमारे पास सक्सेसफुल बन चुके हैं, या फिर कौन कौन इस चीज में अब एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक 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 कैंडिडेट था, मतलब जिसने हमारे को 3 साल पहले ज्वाइन किया था, ही वाज वन ऑफ आवर फर्स्ट एम्प्लॉय। ठीक है, तो उसने एसईओ से ज्वाइन किया था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में वो जॉब करता था। उसको समझ में आ गया था कि मेरे को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं करनी, इसमें करियर नहीं है, जिंदगी भर के धक्के हैं। तो उसने खुद से इन्वेस्टमेंट करी अपनी, उसने टाइम दिया, उसने कहा कि ठीक है मेरे को ये सीखना है, कुछ भी हो जाए। और आज वो बहुत अच्छे से हमारे यहाँ पे सेटल्ड है, और मतलब ही इज एलिजिबल टू लुक फॉर एनीवेयर इन एनी जॉब, क्योंकि उसको ये सारी टेक्नोलॉजी से ही इज फ्रेंडली, और उसका बैकग्राउंड भी मैकेनिकल बैकग्राउंड था। ठीक है, और अदर एग्जांपल्स भी हैं जिसमें हमारे पास बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, बीए के पास आउट स्टूडेंट्स हैं, जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड भी नहीं था, या फिर टेक्निकल से काफी ज्यादा छूट चुका है। तो मैंने आपको दिखाया कि बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती, बट देयर इज अ नीड ऑफ प्रोग्रामिंग। अगर किसी को प्रोग्रामिंग आती है और वो कर रहा है, तो बहुत ज्यादा स्कोप है। सो एनी अदर क्वेश्चंस? Yeah, sir. Yeah. One question. Sir, you were talking about programming. सर, आप प्रोग्रामिंग के बारे में बात कर रहे हो। अगर अब जैसे आप अपने क्लाउड की भी बात करी है, तो क्लाउड के अंदर या सर्वर्स के अंदर तो हम इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं ना उनको ऑपरेट करने के लिए। Actually, I am not much interested in programming. I am much interested in other job equalities or other, you know, courses which are required for a student के उसकी जो अपने skills को बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल courses like For example, courses like AWS. I myself I am doing, Microsoft's MCSA.
about server 2016. So I was just hoping about that, अगर आप उसके बारे में थोड़ा ज्यादा बता सके कि उस लाइन के अंदर क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो इसमें ना मैंने आपको यहाँ पे मैंने क्लाउड के बारे में बताया, राइट? तो मैंने आपको क्लाउड के बारे में मैंने यहाँ पर बताया। तो क्लाउड में मैंने यहाँ पे लिखा भी कि AWS, ठीक है? तो यानी कि हमारे को इस जॉब करने के लिए, और आप अगर कंपनी प्रोफाइल भी देखेंगे तो हमारे यहाँ पे सबसे ऊपर टेक्नोलॉजीज में क्या आता है? AWS, ठीक है? इस प्रोफाइल को करने के लिए हमारे को AWS की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? AWS में हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डेटा स्टोरेज सर्विसेज हैं, डेटा प्रोसेसिंग सर्विसेज हैं। तो मतलब उसमें क्या होता है कि हमारे पास AWS हर एक चीज APIs की तरह एक्सपोज कर देता है, ठीक है? अब जैसे कि अब जैसे कि हमें डेटा मूव करना है, तो हम यहाँ पे बहुत सारी AWS की सर्विसेज यूज करेंगे। जैसे हम उसकी S3 यूज करेंगे सर्विस। अगर मैंने यहाँ पर AWS का एनालिटिक्स का हमारे पास है भी, तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ S3 तो हमारे को एक लोगो मिल जाएगा S3 का, ठीक है? ये S3 का लोगो है। तो हम एक S3 हम AWS की सर्विस यूज करेंगे। सबसे पहले हम डाटा डालेंगे S3 के अंदर, ठीक है? S3 से बाद में AWS की बहुत सारी सर्विसेज हैं, जिसमें कुछ डेटाबेस सर्विसेज भी हैं, जैसे रेडशिफ्ट, ठीक है? तो उसके बाद ये हमारा रेडशिफ्ट में जाएगा। तो यहाँ पे हमारे को AWS की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? तो ये हम कोर्स में कवर करेंगे। हम S3 कवर करेंगे, हम रेडशिफ्ट कवर करेंगे, हम AWS क्लाउड पे आप लॉगिन करोगे, आप वहाँ पे और इसकी कुछ प्रोसेसिंग सर्विस होते हैं जहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट रन होती है। ये ऐसे डायनेमिकली तो चला नहीं जाएगा, राइट? कुछ यहाँ पे हमारी कुछ सर्विसेज होती हैं जो जिसके ऊपर स्क्रिप्ट रन होती है, जो कि डेटा यहाँ से यहाँ मूव करती है। ये तो सिर्फ डेटा स्टोरेज सर्विस है, जैसे हमारा फाइल सिस्टम हो गया, ठीक है? लेकिन क्लाउड में। और ये हमारी डेटाबेसेस है, जैसे हमारा ओरेकल वगैरह हो गया, ठीक है? लेकिन उसमें यहाँ से यहाँ डेटा मूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारी अलग सर्विसेज है, जैसे EC2 एक सर्विस है जिसमें हमारा कोड रन हो सकता है। वो हमारा एक जैसे हमारी कोई मशीन हो गई ना, तो उसी तरह से ये AWS से मशीन्स लॉन्च कर सकते हैं। हमारी EC2 सर्विस है यहाँ पे, इसको हम EC2 बोलते हैं, ठीक है? ये हमारी S3 है, ये हमारा डेटा DB है, रेडशिफ्ट कहते हैं इसको। चलो मैं इसको DB कह देता हूँ फिलहाल, ठीक है? तो और भी हमारी जिसके ऊपर ये कोड रन होता है, ठीक है? ये कोड EC2 पे रन होता है और हम यहाँ से उठा कर यहाँ डेटा डाल देते हैं। तो ये हमारा मेजरली क्लाउड में ऐसे काम होता है, ठीक है? क्योंकि अब ना कोई भी काम ना ऑन प्रेमिसेस नहीं होता। जितना भी काम होता है ना, सारे के सारे डेटा माइग्रेशन वन क्लाउड टू अदर क्लाउड होती है। तो ये जो डेटा वेयर हाउस है ना हमारा, ये हमारा बेसिकली क्लाउड में होता है। तो अब देखो यहाँ पे देखा जाए तो एक क्लाउड से डेटा गया दूसरे क्लाउड में, ये AWS क्लाउड हो गया हमारा, ठीक है? तो एक क्लाउड से यहाँ पे फेसबुक से, मार्केटो से, सेल्सफोर्स से, सैप से, अमेज़न से हमारा गया दूसरे क्लाउड में, विच इज आवर क्लाउड। और ये हमारा क्लाउड, इसको हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इसको ऑन करेंगे। और बाकी ये जो API डेवलपमेंट, ये सारा कुछ एक्चुअली अब ना, क्योंकि क्लाउड बहुत चीप पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को, इसलिए नोबडी इज डूइंग डेवलपमेंट ऑन प्रेमिसेस। डेवलपमेंट अब कहीं पर भी नहीं हो रही है, ठीक है? तो हम AWS की जैसे कि अब मोर देन 200 सर्विसेज हैं, स्मॉल। मैं आपको AWS का अकाउंट खोल के भी दिखा सकता हूँ, ठीक है? हमारे पास AWS की 200 सर्विसेज हैं। उन 200 सर्विसेज में से हम मतलब अराउंड 10-20 सर्विसेज ही यूज करते हैं। बाकी सर्विसेज मतलब सारी सर्विसेज तो मतलब अलग अलग को कैटर करने के लिए है ना। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, ये इसने यहीं पे इतनी सर्विसेज लिस्ट कर दी हैं। अब तो एक मीडिया, टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रैवल, इन सब में जा चुके हैं, ठीक है? तो हम मेजरली जो सर्विसेज यूज करते हैं वो हम डेटा सर्विसेज यूज करते हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि अगर हमारे को कहीं मिल सके डेटा सर्विसेज का डायरेक्ट डेटाबेस एंड माइग्रेशन। तो ये देखो, इन्होंने इसी तरह के बना रखे डायग्राम, राइट?
तो इन्होंने कुछ केस स्टडीज दे रखी। ओके, एनी अदर क्वेश्चन अबाउट करियर, लाइक so we have Keshav as well. So Keshav was I had discussion with few of us here. केशव से मेरी डिस्कशन हुई थी। केशव एक वर्किंग है और केशव इज लुकिंग फॉर लाइक for career enhancement. So that's why Keshav has joined this program, क्योंकि वो अपनी करियर की एनहेंसमेंट के लिए मतलब देखना चाहते हैं कि how they can enhance. They are working in, like Keshav is working in SAP. Now he wants to see that how he can excel by understanding this how he can excel career. Okay, any other question over here? Okay, so I will move Puneet, forward. I'm sorry to interrupt. So, can you also explain how, like, our Java program will help us in this process, as well as like all these queries related to Java, like there are students who enroll for Java course, right? So maybe in the end of this session. So yeah, that's what I wanted to understand. ओके, सो देखो जावा की हमारे को ना डेफिनेटली 101% जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ये जो टैलेंट टूल है ये अल्टीमेटली जावा कोड जनरेट करता है, और हमें कभी भी इस कोड को डीबग नहीं करना होता, क्योंकि ये कोड हमेशा ठीक होता है और दिस कोड इज नॉन एडिटेबल। तो यहाँ पे हमारा कोड ये एडिटेबल नहीं है, जैसे हम इसको देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, बट ये जावा कोड जनरेट करता है। ठीक है, हमें इस कोड को समझने की भी जरूरत नहीं होती। बट अगर हमारे को इसकी फंक्शनैलिटीज को एक्सटेंड करना है ना, तो हमारे पास यहाँ पे एक फीचर है कोडिंग का, जिसमें और कोई भी आप ETL टूल हो ना उसके अंदर कोडिंग का फीचर ना हो ना तो वो टूल अच्छा नहीं होता। ठीक है, अब जैसे इसमें हमारे पास कोडिंग का फीचर है, क्योंकि हम इसकी कैपेबिलिटीज को एक्सटेंड कर सकते हैं फिर भी। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ कोडिंग ऑलरेडी कर रखी है, जैसे इन्होंने कुछ क्लासेस बना रखे हैं, न्यूमेरिक क्लासेस, रेशनल क्लासेस। तो हम यहाँ पे एक और क्लास ऐड कर सकते हैं, जो कि मतलब जैसे टैलेंट स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए इन्होंने क्लास बना रखी है, तो उस क्लास को हम इस जॉब में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी कि मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, रूटीन बनाता हूँ, जिसको हम रूटीन कहते हैं। यहाँ पे मैं इसको डेमो रूटीन कह देता हूँ। ठीक है, डेमो नाम लेने नहीं दे रही है, तो यहाँ पे हम डेमो यूटिल कह देते हैं हम इसको, क्योंकि हम यूटिल्स कहते हैं, हम यूटिलिटीज बनाते हैं। तो हमारी एक डेमो यूटिल बन गई। ठीक है, ऑटोमेटिकली इसने हेलो वर्ल्ड का कोड जनरेट कर दिया। अब इस कोड को अगर मेरे को एक्सेस करना है किसी भी जॉब में, तो फॉर एग्जांपल इसी जॉब में देखो मैं इसको कमेंट कर सकता हूँ, मैं आपको साथ साथ टूल भी सिखाता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से डीएक्टिवेट हो गई, तो मेरा कोड कमेंट हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक नया कंपोनेंट लेकर के आता हूँ, टी जावा। तो हम यहाँ पे एक कस्टम कोड या फिर कुछ भी या फिर विद इन एनी कंपोनेंट, ये सभी जावा के कोड है, हम उस डायरेक्टली उस यूटिल को कॉल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डेमो, यहाँ पे हम सिंपल सी एक लिख सकते हैं सिस्टम, ये जावा की अगर किसी को कोई जावा से फ्रेंडली है तो ये हमारी प्रिंट कोई भी हम प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे हम जावा का कोड यूज करते हैं। ठीक है, और हमने जो ये जावा की डेमो यूटिल बनाई है हेलो वर्ल्ड, इसके अंदर एक वो है। ठीक है, हम बस इसको यहाँ से डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। किसी भी जावा कोई भी जावा फंक्शन हम इसमें बनाते हैं तो हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, डेमो यूटिल डॉट हेलो वर्ल्ड, इसमें हम मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, और हम इसको सिंपल F6 दबा करके रन करते हैं। तो हमारा हमने एक सिंपल सी जावा की क्लास बनाई और हम इसको यहाँ पे कॉल के लिए मैं सेमीकोलन भूल गया हूँ, तो सॉरी 2 बार लगा दिए। ठीक है, एक मिनट। तो ये उस जावा क्लास पे जाएगा और वहां से हमारे को एक सेकेंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग मैसेज हेलो वर्ल्ड
इंट्रोडक्शन सेशन। मैं यहाँ पे एक अपना प्रोग्राम बना लेता हूँ, इसका सिस्टम जनरेटेड यूज नहीं करते। तो ये मैं सिंपल जावा का लिख रहा हूँ, तो इसलिए हमें जावा की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हम एक पैरामीटर ले लेते हैं, जो भी हम वहां से दे दें, स्ट्रिंग एस, ठीक है, और यहाँ पे हम बस एस प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल सा हेलो प्रोग्राम है। ठीक है, इसको हम डेमो यूटिल में हेलो एग्जांपल की तरह हेलो, ओके लेट्स सी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन सेशन, क्योंकि यहाँ से उस डेमो यूटिल पे गया और यहाँ से इसने वो स्ट्रिंग रिटर्न कर दी और हमारा प्रिंट हो गया। तो ये एक सिंपलेस्ट एग्जांपल था कि हाउ वी नीड टू राइट अ प्रोग्राम इन दिस टूल। आई होप दैट आंसर्स व्हाई वी नीड जावा। सिमिलरली हमारे पास बहुत सारे डेटाबेसेस वो है कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर अवेलेबल। ठीक है, और हमें डेटाबेस से अगर कुछ डायरेक्टली एक्सेस करना होता है ना, तो हमारे को SQL भी लिखनी होती है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी नीड SQL एज वेल। आई होप इट्स क्लियर नाउ व्हाई वी नीड जावा एंड SQL। ठीक है, हमारे पास अगर हमें ओरेकल से कनेक्ट करना है तो यहाँ पे ओरेकल कंपोनेंट है, हमें जावा में ये कोड नहीं लिखना कि हम ओरेकल से कैसे कनेक्ट करेंगे या हम कैसे लेकर के आएंगे। ये तो जस्ट हमारे टूल ही लिख देगा सारा कोड। जस्ट हमारे को ये लिखना है कि हम वो कैसे करेंगे। हमें बस लॉजिक सोचना है, लॉजिक सोचना है, हमारा डेटा कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, हाई लेवल फ्लो बनाना है, और यहाँ पे हमारा फ्लो बनता है। एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप्स क्या है? ठीक है, टू कंटिन्यू इन दिस प्रोग्राम आई वांट यू टू सेट अप द Eclipse, ठीक है, which will help you to kind of do the programming, and you will be focusing on very basic programming. I don't want you to go for servlets, those big terms in Java. So this is very targeted program where you will be directly become a professional, a data professional, who can provide services in data, who can provide a job, who can give a job, get a job. So those kind of like you will become that kind of a professional. You can do freelancing, you can do your own work, you can work for someone, you can work in multinational companies. So this program is targeted for that. So I need you to set up these two things. Set up Eclipse, set up database MySQL in order. Or tomorrow Dinesh sir will be taking classes. So Dinesh sir has 20 years of experience in corporate training, academics, and various training programs across different industries. But he will be teaching Java and MySQL, and hope you will continue there and you will find something interesting over there. I will be getting back to you in between and towards the end of that first session course, first part of the program. Then after that we will directly jump into the ETL concepts. I will write it out over here. So ठीक है, तो आफ्टर लाइक जावा एंड SQL, ठीक है,
उसके बाद ये होने के बाद में आपको गिट भी यहीं पे यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि हाउ यू विल मैनेज दिस कोड। फिर आप पढ़ोगे ईट, फिर डेटा वेयर, ठीक है, और फिर इस टैलेंट टूल पे हम पूरी एक सिनेरियो बेस्ड हम डेवलपमेंट करेंगे। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम है, ठीक है। तो एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? I hope I have made my point over here, and it will give you little clarity how industry work, how you can excel. So we still have 15 minutes. Lot of noise. Sonam, you want to say something? You were on mute. Okay, I guess we still have 15 minutes. Puneet, we have one question in chat window. Yeah. So this is from Akash saying, are we going to cover the complete ETL? He's looking for hands-on as well. Yes. So it will be a complete ETL. So first month I will be explaining about the concepts, how to do it, and then in the next month, so because the advanced course is of ETL, right? So then 1 month you will be instructor led, and 1 month will be completely hands-on and practices. And then after the completion of these two, this complete program, Java, SQL, Git, ETL warehousing, you will get a certificate of internship, completion of internship. So which is valid in industry, and you can show it anywhere because you will have a knowledge to like support that. So I'm 100% sure anyone can do it. So even who has non-technical background but has a good mathematical mind, and I will tell you, I'm an average student throughout my academics, but this thing really excites me, and because of my interest, I have opened this firm, Complete Info System. And to support my firm, I need people like you to join me. Even complete industries need like more. There are like more than 15,000 jobs in the market for these topics, for business intelligence developer, for ETL developer. You will be doing complete hands-on, and it's a complete kind of a training program which is fast forward in 3 months, and you will be able to get the job after that. Yes, this internship is for everyone. There is a question, is this internship for everyone? Shubham Bhardwaj has asked this question. Yes, this internship is for everyone. Earlier we were used to given a direct internship, but for like from now we have started a Compleer Academy. There it's this complete program is divided into two parts. One is basic and advanced. In basic you will be taught Java, SQL, Git, and in advanced you will be taught ETL, data warehousing, and talent. Total like a first there will be a fee for first course is 10,000 rupees, and second advanced one is 15,000 rupees, and you will get a complete internship, we can say that certificate after this. So we are starting, so today is the first class. This is as part of first class, and I have taken this opportunity to introduce a demo as well. Any other questions, guys? We still have time to ask questions. So there is one more question. After internship, what about job? So
So we are actively looking for who can join us. So as a complayer in the system, not so we are looking for someone to join us. So this program is targeted to get you ready for the job, so that we can directly hire someone instead of preferring someone who is who just know Java or SQL, or we will be preferring someone who has done this course from us or from anywhere else. So it is not mandatory that you will be doing this course from us only. Guys, we still have time. So the duration for the each class will be 1.5 hours. So tomorrow's class will be at 6:30 till 8. So Dinesh sir will be taking that class. So Dinesh sir has total 20 years of experience in doing the corporate training. I hope I want to see everyone in that class. So I hope that. But sir, college placement and internship don't take any charges. So this is the program we have started. This is not nothing related to the college placements or like that, because every student needs time to nourish his skills. So which I think it's 6 months time. So in order to make you a professional, from a student to a professional, it takes 6 months of time. Then you are able to understand what we are doing. So I think on job is difficult, and having this course and then joining any industry will be beneficial for you as well as for us as well. So because we don't have that much we can say that budget in order to provide this internship as free of cost. We would like to do that, but there is a trainer cost also associated with it. So we are taking a minimal charges. If you go in the market and search for this complete program, you will find it really very, very costly. It will cost around 50,000 to 1 lakh or more than that. So this is very minimal thing. If you go for any Java program or SQL programming language, they will charge you 8,000 or. So the next question from Shubham again is the package after internship. So the packages would be based upon your skill set. Like for example, if you have understood the concepts, so in Compare Info System, we have starting packages starting from 15,000 to maximum range is nothing. It's just based upon your experience. Starting packages are starting from 15 to 25. So based upon if you have a good knowledge, you have a good communication skills, and then we don't have any issues in giving the packages. That's why we have designed this program in such a way. But if someone needs further nurturing, or someone we cannot represent it to clients, or someone who is not ready yet to take the work, so we will offer them a basic package. And if someone is, we find them in interview, if we find them a good person who can really take responsibilities, go go beyond go beyond the boundaries and to do the job, so we are definitely want to hire him for anything he agrees on. So there are lots of job in the market for this. There are lots of companies working. So this is not a specific technology which we work on. This is the common technology industry wise. Every industry
there could be a different tools, but the concepts will always be same. The concept is same from last 20 years or 30 years, more than that. The concepts are not changing. If we are in AWS, the concepts will be same. It's just the tools and technologies are changing, not the concepts. So this introduction session, so from tomorrow, a complete training will start from feet 0. So I have shown you the these diagrams. So from 100,000 feet above or 10,000 feet above. So, but from tomorrow we will be starting it from the very basic level. Why Java? What is Java? And we will be starting from there. We will be doing very simple programs, and then increasing the complexity little higher as we go along based upon your engagement. And once we are completed this course, the advanced course will begin from the next day onwards. In that we will be studying about the complete ETL concept, data warehousing concepts, and other concepts related to data. We will be exploring AWS, how we will creating a data lake, all those technologies which I have shown you in which I am pitching to the clients. So all of these technologies which is related to data. So serverless or express, this is related to application development. So we will not be touching them. We will be touching them only technologies which are related to data. So you can write everything in your resume. So there are some sample resumes which I am forwarding to my clients, which look like, so that will give you an idea how does resumes look like. We still have 4 minutes left for this meeting. So let's say I will show you the sample resumes. Yep. So resumes will look like this. So this is like this is an ETL developer resume which was working in our company, and we have sent it for the send it to the clients. So let me present it to make it look bigger. So you can see how does this resume look, right? So ETL senior developer with strengths in software development lifecycle, product support, availability to quickly learn technologies. Other strengths include ability to solve business problems. Use talent integration. So these are the talent tools she has worked upon. Design, developed unit test, ETLs, mapping, script for database using talent and OpenStudio. So these are the technologies which she is working, right? And she's a senior developer. So job responsibilities: code, test, implement, maintain medium to high level complexity mappings, and script to build and maintain automated ETL jobs. Prepare detailed design to develop talent jobs for Infograph project. Reported weekly status of the project to stakeholders. Highlight area of improvements and achievements. Perform post development validation and take sign off from business. So this is one of the examples where like how you will be proceeding. Okay, so I think we are very close to the time slot. So any more questions if anybody have, or they can ask questions on chat group. Tomorrow's link, tomorrow's session link I will be sharing on the chat on the WhatsApp group, so that everyone can join tomorrow's. So I hope you would have liked the session, and we'll continue in this. So Rubal, any other questions? Can we close it? Yes, Manit, I think we are good to close it. And thank you so much for the great session. It was very informative. Thank you. I think that's it for the day
Okay, team. I hope you guys